सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् सर्वकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं धर्मसम्बन्धकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषामे वचनानुसारमासाद्य श्रीमद्भगवत् पूज्यपाद स्वामी विरचितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अनन्त अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहोराज चंद्र ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन। जय स्वाध्यायમાં શ્રી ઇષ્ટોપદેશ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। શ્રીમદ પૂજ્યપાદ સ્વામી વિરચિત। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृषद स्वर्णता मता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता वरं व्रतैः पदं देवं नाव्रतैर्वत नारकम् छाया तपस्थयोर्वेद प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते द्योक्यद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। ऋषिकजं मनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाके नाकोकसां सौख्यं नाके नाकोकसामिव। वासनामात्रमैवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा हुद्विजयन्ते ते भोगारोगा इवापदि। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवे। वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे
સ્વસ્વકાર્યવશાદ્યાન્તિ દેશે દિક્ષુ પ્રગે પ્રગે. વિરાધકઃ કથમ હંત્રે જનાય પરિકુપ્યતિ ત્રયંગુલમ પાતયન પદ્ભ્યામ સ્વયં દંડેન પાત્યતે. રાગદ્વેષદ્વૈ દીર્ઘ નેત્રાકર્ષણ કર્મણા અજ્ઞાનાત સુચિરમ જીવ સંસારાબ્દો ભ્રમત્યસો. શ્લોક નંબર 10, એનો અર્થ કોણ બતાવી શકે? વિરાધકઃ કથમ હંત્રે જનાય પરિકુપ્યતિ ત્રયંગુલમ પાત્યન પદભ્યામ સ્વયં દંડેન પાત્યતે. હા, हितेश भाई, हाँ, अर्थ याद नहीं किया है? अच्छा, विपुल भाई. વિરાધક એટલે જેણે પહેલા બીજાને હેરાન કર્યા હતા, દુઃખ આપ્યું હતું એવા. યસ, વેરી ગુડ. તો અત્યારે વર્તમાનમાં પરિસ્થિતિ આવે છે તો પછી એ પહેલા એમને કર્યું હતું એવી રીતે હેરાન, તો અત્યારે આપણે ભોગવવું પડે છે. તો જેવી રીતે ત્રયંગુલ છે, ત્રયંગુલ નીચે પાડનાર વ્યક્તિ એને પાડવા જાય છે પણ પોતે જ નીચે પડી જાય છે. એનો અર્થ શું થયો? ભાવાર્થ બતાવો. એનો ભાવ શું? એનો ભાવ છે કે પહેલા જે વિરાધક જે આપણે કર્મો કર્યા હતા તો એના કારણે અત્યારે આપણે આવી પરિસ્થિતિ ભોગવવી પડે છે. તો શબ્દ નથી મળતો. હા, શિરીષ દાદા બતાવો. જે અહિત કરીએ છીએ બીજાને, હા, એ અહિત ન કરતા એના સાથે રાગદ્વેષ ન કરવો જોઈએ અને એનું કેમ કલ્યાણ થાય, એને કેમ સારું થાય એ જાતની ભાવના ભાવવી જોઈએ. યસ, રાગદ્વેષ એના વિરુદ્ધ ન કરવો જોઈએ. गुप्ता जी श्लोक का अर्थ बताएंगे? अरुण दादा. તો આપણે જેમ જેમ ભણતા જઈએ એમ આપણે બધા શ્લોકોનો અર્થ યાદ રાખવાનો છે. आगे आगे पाठ और पीछे पीछे सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए. આગળ આગળ વધતા જઈને પાછળ પાછળનો સપાટ. તો દરેક શ્લોકનો અર્થ આપણને આવડવો જોઈએ. ચલો, તો વાંચી રહેવાનું, કાલે ફરીથી એના પર ડિસ્કસ કરીશું. 10 વિપદ્ભવ પદાવર્તે પદી કેવાતિ વાયતે યાવત્તાવદ ભવંતન્યા પ્રચુરા વિપદ પુર. દુરર્જેના સુરક્ષેણ નશ્વરેણ ધનાદિના સ્વસ્થમ મન્યજન કોપી જ્વરવાનીવ સર્પિષા. વિપત્તિમાત્મનો મૂઢ પરેશામીવ નેક્ષતે દય્યમાન મૃગા કિરણ વનાંતર તરુસ્થવત. આયુર્વૃદ્ધિ ક્ષયોત્કર્ષમ હેતુ કાલસ્ય નિર્ગમમ વાંછતામ ધનિનામિષ્ટમ જીવિતાત સુતરાધનમ. ત્યાગાય શ્રેયસે વિત્તમવિત્તઃ સંચિનોતિ યઃ સ્વશરીરમ સપંકેન સ્નાસ્યામીતિ વિલંપતિ. આરંભે તાપકાન પ્રાપ્તા વતૃપ્તિ પ્રતિપાદકાન અંતે સુદુસ્ત્યજાન કામાન કામમ ક સેવતે સુધી. ચલો 16 નંબરના શ્લોકનો અર્થ બતાવો. એકદમ ઇઝી છે, ઘણો ઇઝી. ત્યાગાય શ્રેયસે વિત્તમ અવિત્તઃ સંચિનોતિય સ્વશરીરમ સપંકેન સ્ન્યાસ્યામિતિ વિલંપતિ. વગર જોઈએ, બિના દેખે. અરુણ દાદા નો. હસમુખ દાદા નો. વગર જોઈએ નહીં. પ્રસન્ન કાકા નહીં. વિપુલભાઈ પ્રયત્ન કરો. એટલે શ્લોક વાંચીને, વગર જોઈએ એટલે અર્થ નહીં જોવાનો, શ્લોક જોવાનો, શ્લોકમાંથી અર્થ કાઢવાનો.
त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः संचिनोति स्वशरीर स पंकेन स्न्यास्यामिति विलंपति। त्यागाय એટલે आपको आता है थोड़ा थोड़ा? કોઈ વ્યક્તિ हाँ દાન પુણ્ય કરે છે हाँ અને ધનનો સંગ્રહ કરે છે અને પોતાને પુણ્ય મળી જશે એવી રીતે જે સત્કાર્ય અને બધું કરે છે ઈચ્છા રાખીને તે પોતાના શરીર ઉપર કાદવ લગાવવા બરાબર છે। ઈચ્છા રાખીને કર્મ કરે છે। थोड़ो गड़बड़ है। चलो आप हितेश जी बताओ। माइक चालू करना। जो त्याग धर्म ध्यान करता है मतलब इच्छा करता है श्रेय की मतलब क्या कहते हैं माइक मुंह पे रख। हिंदी में कहते हैं श्रेय से वित्त मतलब कल्याण। एक सेकंड जो त्याग श्रेय का मतलब कल्याण हित जमा करने के लिए मतलब करता है जो मतलब जिससे लोग उसकी तारीफ करते हैं उसके लिए करता है तो वो खुद के शरीर को कीचड़ से लपेटने के बराबर है मतलब उससे नहाने के बराबर है कुछ। थोड़ा थोड़ा आया पर पूरा नहीं आया गड़बड़। हाँ गुप्ता जी। एक निर्धन व्यक्ति धन इकट्ठा करता है दान आदि के लिए। किसके लिए? दान आदि पुण्य आदि करने के लिए। अच्छा हाँ। तो इसका मतलब यह है कि पहले शरीर पे कीचड़ लपेट लो फिर बाद में स्नान कर लेंगे। यस इसका अर्थ बराबर आ गया कि कोई व्यक्ति अवित्त हो जिसके पास धन नहीं है ऐसा व्यक्ति संचिनोति संचय करता है। किसको? वित्त किसके लिए? त्यागाय त्याग के लिए। श्रेय अथवा कल्याण के परमार्थ के काम करूँगा ऐसा करके कोई पैसा इकट्ठा करता है कि बाद में मैं खूब सारा दान दूंगा ये करूँगा वो करूँगा तो उसको कैसा कहा है आचार्य ने? वो अपने शरीर को पहले कीचड़ से लपेटता है और मैं बाद में स्नान कर लूँगा यूँ करके। तो भाई दान पुण्य इत्यादि करना है तो पैसों से ही होता है ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। दान पुण्य आदि करने के लिए धन कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक आपको लोगों का सबसे अधिक कल्याण किससे होता है? अपने ज्ञान ध्यान और तप के द्वारा परोपकार सबसे अधिक होता है। इसके लिए पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। हाँ अपने पास पैसे हो तो उसको दान आदि में देना चाहिए पर दान देने के लिए पैसे कमाऊं ऐसा करना नहीं चाहिए। तो पहले कीचड़ में पड़ना जैसा है और फिर वापस स्नान करने जैसा है। ये सब लोगों की स्थिति देख करके महाराज लिखते हैं। 16 नंबर न श्लोक। चलो भवन्ति प्राप्य यत्संगमशुचिनी शुचिन्यपि सकाय संततापाय सदर्थं प्रार्थना वृथा। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम् यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः। स्वसंवेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्यय अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकन। संयम्य करणग्राममेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम्। अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वच। परिषहाद्य विज्ञानादास्रवस्य निरोधिने जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा। घटस्य कर्ताहमिति सम्बन्धस्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव सम्बन्धकीदृशस्तदा। बध्यते मुच्यते जीव स ममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचर बाह्यसंयोगजा भावा मत्ता सर्वेऽपि सर्वथा। दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां
त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा न बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले। भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कर्म कर्म हिता बन्दी जीवो जीव हितस्पृह स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। परोपकृतिम् उत्सृज्य स्वोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यनिरन्तरम्। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टज्ञापकत्वतः स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत्। अभवचित्तविक्षेप एकान्ते तत्त्वसंस्थितः अभ्यस्येदभियोगेन योगी तत्त्वं निजात्मनः। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। निशामयति निशेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। इच्छत्येकान्तसंवासं निर्जनं जनितादरः निजकार्यवशात् किञ्चिदुक्त्वा विस्मरति द्रुतम्। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति स्थिरीकृतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम् यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति। अगच्छन्नस्तद्विशेषाणानभिज्ञश्च जायते अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा ततः सुखम् अत एव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमा। अविद्वान हाँ यहाँ थी बाकी वेरी गुड। चलो अब आगे कहते हैं कि पहले श्लोक में ऐसा कहा कि पर तो पर है उससे दुख होता है, आत्मा आत्मा है अर्थात स्व है उससे सुख होता है। इसलिए महापुरुषों ने आत्मा को साधा, आत्मा की ओर ध्यान दिया, दूसरे परद्रव्यों की ओर ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ शिष्य प्रश्न पूछता है कि दूसरे द्रव्यों की ओर ध्यान दें तो क्या होता है, क्या दिक्कत है? मैं घर बनाऊं, मैं परिवार बनाऊं, मैं ये करूं, मैं इंद्रिय विषयों का सेवन करूं, आपको क्या दिक्कत है इसमें? और आपको दिक्कत हो तो हो, मुझे क्या दिक्कत है इसमें? मुझे तो सब अच्छा लगता है। परद्रव्य सारे सारे मुझे तो अच्छा खाना अच्छा लगता है, अच्छा देखना अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी चीज़ें छूनी अच्छी लगती हैं, अच्छा अच्छा टेस्ट अच्छा लगता है, ये सब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप कह रहे हो छोड़ाओ, तो इससे क्या प्रॉब्लम है? अगर परद्रव्यों का हम सेवन करें, विषयों का सेवन करें, संसार में भोग आदि को धन आदि को इकट्ठा करें तो दिक्कत क्या है? तो क्या दिक्कत है वो बताते हैं इस श्लोक में। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम है मिसप्रिंट। हाँ, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। अब एक एक लाइन बोलना। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदति तस्य तत्
अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। अब एक साथ 3 बार। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम योभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। हाँ, कौन बोलेगा भाई? विपुल भाई। शुद्ध उच्चारण सहित बोलना। ये द्रव्य की जगह द्रव्यम ऐसा कहते हैं ना। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम योभिनन्दन्ति तस्य तत्। योभिनन्दति तस्य तत्। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यम योभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुच्यति। मुंचति। चलो, वेरी गुड। हितेश जी। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। वेरी गुड, सरस। हाँ, हसमुख दादा। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। वेरी गुड। अरुण दादा। अविद्वान् पुद्गल द्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। चलो, वेरी गुड। और किसी को बोलना है? आ बधाने आवड़े छे। बहनों तरफथी पूज्य बेन श्री बोलशे एकला। प्रतिनिधित्व। अविद्वान् पुद्गलद्रव्यं योऽभिनन्दति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। वेरी गुड। अर्थ बराबर, एकदम परफेक्ट। हाँ, कोने बोलવું? તમારે બા બોલવું છે? નથી બોલવો? आपने फावे बोलવાનું? नहीं फावे? चलो, तो अर्थ। यो मतलब जो। कौन? तो अविद्वान। अविद्वान का मतलब जो है उपादेय का विवेक नहीं कर सकता है वो। अभिनंदती। अभिनंदती मतलब इच्छा करता है, आनंदित होता है। किसकी इच्छा करता है? पुद्गल द्रव्यम। पुद्गल द्रव्य को चाहता है। तस्य तत्, उसको, तत् वह। कौन? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य। न जातु मुंचति, नहीं छोड़ता है। क्या नहीं छोड़ता है? सामीप्यम, समीपता को नहीं छोड़ता है। चतुर्गतिषु, चारों गतियों में। जंतो हो, उस प्राणी को। जो प्राणी पुद्गल द्रव्य की इच्छा करता है, उस प्राणी को चारों गतियों में ये पुद्गल द्रव्य उसका पीछा छोड़ता नहीं है। एक बार आपने इच्छा करी तो वो भूत की तरह लगा रहेगा अपने साथ। इसलिए इच्छा करने से पहले अपने को बहुत बार विचार कर लेना चाहिए। एक व्यक्ति बहुत आलसी था, आलसी। तो उसने विचार किया कि यार कोई अपने काम करने वाला हो तो अच्छा है, तो काम करने वाला कोई मिल जाए तो ठीक है। पर पैसे वैसे कुछ थे नहीं, तो काम करने वाला कहाँ से लाए? तो किसी के पास गया तो उसने एक आइडिया दिया, तू ऐसा कर, तू एक जिंद को सिद्ध कर ले। जिंद मतलब भूत।
उसको सिद्ध कर ले, वो तेरा सारा काम करेगा। तो ये मैं मंत्र देता हूं तुझे और तू ये सिद्ध कर ले। अब वो सिद्ध कर लिया, आलसी था, कुछ करना नहीं पड़ता है, एक को सिद्ध करूंगा तो मेरा सारा काम हो गया, और वो जिंद सिद्ध हो गया उसके। और वो उसकी विशेषता ये थी कि उसको काम बताना पड़ता है आपको। आप उसको काम नहीं बताओ तो वो काम बताने वाले उसके स्वामी को ही मार देते हैं, वो खा जाता है। तो पहले पहले तो उसने खूब काम बताया, मेरे लिए घर बना दे, मेरे लिए खेत बना दे, मेरे लिए अनाज पैदा कर दे, मेरे लिए ये कर दे। पर अब कितना काम बताए व्यक्ति को, आखिर काम तो खत्म हो जाता है। फिर वो उसके गुरु के पास गया कि भाई मेरे तो ऐसे ऐसी समस्या हुई भाई, मैंने उसको पैदा तो कर दिया पर मेरे पास काम ही नहीं बचा है और वो तो मुझे ही मारने आ रहा है। तो उसके गुरु ने कहा तो ऐसा कर, एक खंबा बना और उस खंबे के ऊपर नीचे चढ़ो, ऊपर उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऐसा उसको कहना। तो उसने ऐसा किया कि तू इस खंबे के ऊपर चढ़ना फिर उतरना, चढ़ना फिर उतरना। उसने ऐसा किया तो 2 घंटे में वो खंबा भी टूट गया। अब वापस खंबा लगा उसके लिए, फिर वो वापस दूसरा खंबा लगाया उसने। अब वो 2-4 घंटे में वो खंबा भी तोड़ दिया, फिर तीसरा। अब वो खंबे ही लगाता रहा। और वो व्यक्ति है, वो उस जिंद के कारण से इतना परिश्रमी हो गया, क्योंकि उसको व्यस्त रखना था, इसलिए उसको खंबे लगाने थे। दिन में 15-20 खंबे लगाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके गुरु ने उसको कहा कि भाई अब है, मैं तुझे इस जिंद से पीछा छुड़ाने का मंत्र बताता हूँ। तो उसने दूसरा मंत्र बताया जिससे उस जिंद से उसको पीछा छूट जाए। क्यों? क्योंकि काम पूरा हो गया था। गुरु को ये इच्छा थी कि ये परिश्रमी हो जाए, तो उस खंबे लगाने के चक्कर में वो काम करना तो बराबर सीख गया था। फिर उसको जैसे तैसे करके वो दूसरा मंत्र बताया और वो जिन से पीछा छुड़ाया। इतने में ये स्वयं ही परिश्रमी हो गया था और अपना काम सब करने लगा। इसलिए किसी को इच्छा हो तो पहले विचार कर लेना, ये मेरे कहीं पीछे तो नहीं लग जाए। ऐसे पीछे लग जाते हैं। दुनिया के लोग क्या है कि इच्छाएं करते हैं। कैसी इच्छा करते हैं? कोई स्त्री की इच्छा करता है, कोई पति पत्नी की इच्छा करता है। ऐसे वही मुझे अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए उसको, और फिर वो दोनों का प्रेम बढ़ता है आपस में। और प्रेम बढ़ता है तो ऐसा प्रेम बढ़ता है कि वो दोनों ऐसी कस्में खाते हैं। कैसी कस्में खाते हैं कि 7 जन्म तक हम साथ में रहेंगे। और वो फिर क्या होता है, जिस समय वो कसम खाता है ना, उस समय तो उनके शादी के 5 साल ही हुए होते हैं। 5 साल क्या, 2-3 साल। तो उनका बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है, इसलिए वो कस्में खा लेते हैं। फिर जैसे जैसे 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे होते हैं और वो शरीर की कांति कम पड़ती है, आपस में भोगों की वो इच्छा है वो थोड़ी कम पड़ती है, मन पड़ती है, और वो दोनों एक दूसरे को बोझ रूप लगने लगते हैं। उस समय जो वो कसम खाई थी ना, वो याद आती है उसको। और क्योंकि आपने कसम तो खाई, इसलिए अब आपको वो छोड़ने वाला नहीं है। न वो आपकी पत्नी छोड़ेगी, न आपका पति छोड़ेगा। अब इस जन्म में तो आपको निभाना ही है उसको, और फिर अगले जन्मों में भी, क्योंकि आपने भावनाएं करी नहीं, अब ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है आपको। 7 जन्म में आप नहीं इच्छो तो भी आपको टकराएगा वो जैसे तैसे करके। और अगर आप ज़्यादा कुछ द्वेष करो तो उन दोनों का फिर दुश्मनी हो जाती है, और एक दूसरे को परिवार में आकर के दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपनी दुश्मनी निकालेंगे। क्यों? इच्छा करी आप, परिवार की इच्छा करते हैं, क्षेत्र की इच्छा करते हैं, सोने चांदी की इच्छा करते हैं। ये इच्छा करते हैं तो यही उसका साथ नहीं छोड़ता है, और अगले जन्म में आकर के यही उसको परेशान करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई इच्छा पर द्रव्य की नहीं करना। आचार्य महाराज ने ऐसा कहा कि पर तो पर रूप ही है, वो कभी भी अपने को सुख दे सकता नहीं है। इसलिए इस जन्म में जितना भी अपने को पूर्व के ऋणानुबंध से मिला हुआ है उसको भोग लो प्रेम से। नया इच्छा करने की कोई आवश्यकता नहीं। माँ होती है, वो अपने बेटे के प्रति इच्छा करते हो, हर भाव में यही मेरा बेटा होना चाहिए। वो मकर संक्रांति है ना, मकर संक्रांति, सकृत, अपने मकर संक्रांति का उत्तरायण,
उत्तरायण, तो उत्तरायण के दिन वो तिल पापड़ी खिलाते हैं, तल तल खवड़ावे ना આપણે तल खवड़ावे। तो इसमें ऐसी मान्यता है कि भाई सबसे पहले जो खिलाएगा वो उसकी माँ होगी, किसी को सबसे पहले जिसको तिल खिलाएगा वो उसकी माँ होगी। तो वो उसकी जो माँ होती है ना, वो 5 बजे रेडी कर देती है तल वगैरह, पहले दिन रात से ही रेडी कर देती है, और मेरा बेटा कहीं दूसरी जगह खा के नहीं आ जाए, यूं करके वो सबसे पहले उसको खिला देती। इच्छा क्या है उसकी कि ये मेरा बेटा ही है ना, रहना चाहिए। और धीरे धीरे जब वो नालायक निकलता है ना वो बेटा, और उससे वो फिर पिंड छुड़ाना चाहती है, फिर भवो भवो बेटा उसको पिंड नहीं छोड़ता है। और आपने ऐसा विचार किया कि ये भवो भव में मेरा बेटा होना चाहिए, तो तुरंत आपने क्या है कि स्त्री पर्याय से छूटने की कोई भावना ही नहीं आपने, मतलब आपने तो स्त्री पर्याय को बांध ही लिया कि अब नेक्स्ट वो में फिर से आप स्त्री पर्याय में आने ही वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस स्त्री पर्याय से निकलने की भावना ही नहीं हो रही। और स्थित पर्याय है वो एक प्रकार से पाप का उदय है, कोई बहुत पुण्य का उदय है ऐसा नहीं है स्त्री पर्याय। तो हम अनजाने में ऐसे बांध लेते हैं, एक दूसरे के साथ ऋण बांध लेते हैं, फिर उनसे छूटना बहुत कठिन हो जाता है। पर्यायगत बहुत सी प्रॉब्लम्स विकार होते हैं। कोई पशु बनता है तो पशु गति में, पशु पर्याय में ऐसा मग्न हो जाता है कि उससे संबंधित आश्रय वो कर लेता है, तो वो उस तिर्यन गति से छूटता ही नहीं है वारंवार, क्योंकि उस गति में जाने से उस गति के अनुरूप उसके परिणाम हुआ करते हैं, ऐसी उसको वासनाएं होती हैं। जैसे तिर्यंज गति है वो मुख्य रूप से माया प्रधान है, तो उसमें माया के ऐसे भाव हुआ करते हैं, और निरंतर उस तिर्यंच का जो चित्त है ना वो वासना में रहता है। तिर्यंज गति में जाने वालों का 2 प्रकार का चित्त होता है। एक जो निरंतर वासना युक्त चित्त होता है, हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, या तो उनका चित्त कुछ खाने में लगा होगा या कुछ इकट्ठा करने में लगा होना, हमेशा चित्त में कोई न कोई एक वासना चलती है और वो निरंतर चलती रहती है, तो वो नियम से तिर्यंज गति में जाएगा, वो पशु बनने वाला है। अथवा जिनके मायाचारी के भाव होते हैं, छल कपट के भाव होते हैं, दिखना कुछ और होना कुछ और, वो नियम से तिर्यंज गति में जाता है। और जब वो तिर्यंज गति में जाता है उसके बाद उसके यही परिणाम निरंतर चला करते हैं, और इसके कारण से नवीन फिर तिर्यंज गति को बुलाता है वो, और ऐसे वो एक बार तिर्यंचों में चला जाता है तो वो असंख्यात वर्षों तक तिर्यंचों में ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो पर्यायगत भाव उसका पीछा छोड़ते नहीं है। कोई ऐसा कोई संग मिल गया, अकाम निर्जरा हो गई, अथवा कोई ऐसा कोई निमित्त मिल गया, कोई महात्मा वगैरह का, कोई ऐसा कोई अंत में मृत्यु के समय ऐसे कोई अच्छा वातावरण मिल गया, कोई मंत्र नमोकार मंत्र जैसा सुनने मिल गया, तो तिर्यंच की आयुष्य का फिर उसका बदलाव हो जाता है। नहीं तो असंख्यात वर्षों तक वो पशुओं में ही भटकता रहता है। क्यों? पर्यायगत भाव, उस पर्याय में उसके वो ही भाव हुआ करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो अविद्वान होता है, अविवेकी है, बुद्धिहीन है, वो क्या है कि पुद्गल द्रव्य की इच्छा करता है, विषयों की इच्छा करता है, पर द्रव्यों की इच्छा करता है, और वो पुद्गल द्रव्य फिर उसको चारों गतियों में उसका पीछा छोड़ते नहीं है, जहां भी जाओ उसके साथ लगा रहता है। ये शरीर है, हम इस शरीर को बचाने का, सुरक्षित रखने का कितना प्रयत्न करते हैं, तो ये शरीर कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हम जिस गति में जाएंगे उस गति में ये शरीर हमको मिलेगा, और फिर इसी के कारण से फिर से नवीन शरीर धारण करेंगे, अर्थात नवीन भाव धारण करते हैं। नवीन भाव धारण करने का मुख्य कारण ये शरीर आदि के प्रति अपना जो देह है, अपना जो ममत्व है, वो ममत्व भाव है। हम इसको बचाने का प्रयत्न करते हैं, आत्मा को खो देते हैं, आत्मा को मार करके शरीर को बचाएंगे, आत्मा की हत्या करके परिजनों को बचाएंगे, तो वो परिजन भी अपना साथ नहीं छोड़ेंगे और ये शरीर भी अपना साथ नहीं छोड़ेगा। अर्थात भव में अपने को, इस शरीर के लिए हम कितना कुछ अपने आत्मा को बेच देते हैं, बेच देते कि नहीं बेचते हैं। इसको स्वस्थ रखने के लिए
हम कितनी कुछ हिंसा कर लेते हैं, नहीं खाने का वो भी खा लेते हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए हम कितने प्रकार का आयोजन करते हैं, घर बनाते हैं, ये बनाते हैं, अच्छे अच्छे बिस्तर, अच्छे अच्छे सुगंधी भोजन, अच्छी अच्छी ये सब किसके लिए कर रहे हैं हम? ये हमारे सहूलियत में रहे, इसके लिए। जीवों की हिंसा करने से हम तनिक भी नहीं घबराते, और फिर हम कहते क्या हैं, ये तो शरीर धर्म है, तो हमें अपना धर्म निभाना चाहिए। तो आपके शरीर को बचाना वो आपका धर्म नहीं है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा को बचाना वो हमारा धर्म है। शरीर जाए तो जाए, पर आत्मा को दाग नहीं लगना चाहिए, आत्मा की हिंसा नहीं होनी चाहिए, आत्मा का घात होना नहीं चाहिए। इसलिए जो अविद्वान होते हैं, जिनको विवेक नहीं होता है, वो इस शरीर के कारण से, अपने परिजनों के कारण से, व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी कर लेता है, छल कपट करता है, किसके लिए करता है? अपने परिवार के लिए करता है। 2 नंबर का क्यों कमाना है बताओ? खुद को जीना हो तो सामान्य थोड़ी बहुत कमाई कर लेगा, अपना जीवन चलता है आराम से। 2 टाइम का भोजन, थोड़े 2 जोड़ी कपड़े और थोड़ा छोटा सा आवास, वो तो एक सामान्य ईमानदारी से कमाएंगे तो भी चलता है अपने। परंतु जो बहुत अधिक कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? अपने परिवार वालों के लिए कर रहा है, उसी के लिए 2 नंबर का कर रहा है, उसी के लिए वो इतने सारे हिंसा, छल कपट, चोरी वो कर रहा है। और वो पाप कोई अपने परिवार वाले अपने से लेने वाले नहीं है, उनके ऊपर नहीं लेंगे, वो तो हमारे ऊपर ही आने वाले। तो शरीर का मोह थोड़ा कम होता है तो परिवार वालों से बढ़ जाता है। अपने शरीर से अधिक दूसरे का शरीर, दूसरे की चिंता वगैरह है, तो पर चिंता अधमा धमा, अधम से अधम होता है वो दूसरों की चिंता है क्या करता है। तो आत्मा की चिंता करना, ऐसा यहाँ कहने का अभिप्राय। आत्मा के लिए हमको एक बार शरीर का त्याग भी कर देना पड़े ना, तो शरीर का त्याग कर दे। उसके लिए ऐसा विचार नहीं करना, देखो बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानो न मड़ो। अब इतना बहुत सारे पुण्य से शुभ देह मिला है और उसको अपन कैसे ऐसे ही जाने दें, इसलिए शरीर को बचा के रखो। तो आप अगर खोटे काम से इस शरीर को बचाना चाहेंगे तो आत्मा की हत्या करके शरीर को बचा बचा के कितना बचाएंगे? ये तो एक दिन जाने वाला ही है। इसलिए जहां आत्मा और शरीर 2 में से किसी एक का त्याग करने का आता है, तो हमेशा अपने को शरीर का त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। एक टाइम भूखा रह जाएंगे परंतु अभक्षक भोजन नहीं करेंगे, 2 दिन भूखे रह जाएंगे पर हिंसक पद्धति से बना हुआ भोजन नहीं करेंगे। थोड़े कपड़े कम हो तो चलेंगे, पर जीवों को मार करके जो कपड़े बनाए हैं वो कपड़े नहीं पहनेंगे, क्योंकि इसमें हम आत्महत्या कर रहे हैं। आत्मा की तो हत्या कर रहे हैं ना अपन, इसलिए। और शील का भंग हो रहा है अपने वगैरह, तो शरीर जाए तो जाए पर अपना शील, अपने गुण, अपनी दया नहीं छोड़ेंगे, अपनी क्षमा नहीं छोड़ेंगे, अपनी सरलता नहीं छोड़ेंगे, अपना संतोष नहीं छोड़ेंगे, अपना संयम धर्म नहीं छोड़ेंगे। अपन इस शरीर को जाना हो तो जाओ और रहना हो तो रहो। हम अपनी आत्मा के विकल्प के रूप में शरीर का उपयोग कभी करेंगे नहीं। अपनी आत्मा को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी। आत्मा मतलब क्या? आत्मा मतलब ये अपनी क्षमा के लिए, अपने संतोष के लिए, अपने विनय के लिए आत्मा को दांव पे नहीं लगा। अरे शरीर, आत्मा को दांव पे नहीं लगाना, शरीर को दांव पे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ऐसा करेंगे तो हम आत्मा की इच्छा करेंगे तो हमारे पास आत्मा रहेगा, हमारे समीप कौन रहेगा? आत्मा रहेगा। और दूसरे द्रव्य की इच्छा करें तो हमारे समीप कौन रहेगा? दूसरा द्रव्य रहेगा। और वो कोई पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम, अविद्वान अविवेकी, तो चारों गतियों में वो नहीं छोड़ता है। हमको ऐसा लगता है कि बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं कि इस भाव में तो टेंशन छूटा, अब हमसे सहन नहीं हो रहा है, हम इससे तो आत्महत्या कर ले।
तो दूसरे भव में फिर से वो शरीर मिलेगा और अधिक कठिन परिस्थितियां मिलेगी। जो आत्महत्या करता है वो नियम से दुर्गति में जाता है, और कदाचित कोई ऐसी गति वगैरह हो तो व्यंतर आदि बनता हो और अधिक एकेंद्रिय में जाने की तैयारी वहां कर लेता है। तो ये शरीर के लिए अपने आप को दांव पे नहीं लगाना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ है। चलो, कोई प्रश्न इस विषय में? जंतो शब्द उपयोग में है। जंतो मतलब बेचारा प्राणी, प्राणी, इस प्राणी, तो उसको बेचारा कहा है। तो फिर क्या करना चाहिए अपने को? इस शरीर की इच्छा नहीं करें, ये नहीं करें, तो क्या करना चाहिए? तो हमेशा ऐसा ही भावना करना चाहिए कि अब मुझे न शरीर की इच्छा है, न किसी प्रकार का परिजनों की इच्छा है, अब न मुझे धन की इच्छा है, मुझे अब किसी की इच्छा नहीं है। हे भगवान, अब तो इस संसार सागर से हमें पार लगाओ। पार लगने की इच्छा होनी चाहिए। तो अपन एक दो भाव में जो जैसी भावना करता है उसको ऐसा हो जाता है। परंतु व्यक्ति को इस बात पे श्रद्धा ही नहीं होती है कि हमारा शरीर ही नहीं रहेगा, इंद्रियां ही नहीं रहेंगी, तो हम सुखी कैसे रहेंगे? शरीर है तो सब कुछ है, वो तब हम खा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। इंद्रिया हो तो फिर हमारा शरीर भी नहीं रहेगा, इंद्रिया भी नहीं रहेगा, हमें खाएंगे क्या, देखेंगे क्या, सुनेंगे क्या, करेंगे? कुछ नहीं करेंगे हम तो। फिर हम बहुत दुखी हो जाएंगे। ऐसा ये अविद्वान मानता है, जो मूढ़ है वो मानता है। तो वास्तव में हम शरीर से हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम ये सब आत्मा से कर रहे हैं। ये तो केवल खिड़कियां हैं। ये 5 इंद्रियां क्या हैं? खिड़कियां हैं। तो व्यक्ति को यूं लगता है, कोई व्यक्ति जैसे इधर से कोई देखता है, यहां से बाहर देखा, तो किसके द्वारा देखा? खिड़की। हाँ, खिड़की के द्वारा देखता है। तो वो क्या समझता है कि मैं खिड़की से देखता हूं, पर देखा किससे? देखा तो उसने आंख से है ना, खिड़की से थोड़ी देखा है। वो तो खिड़की तो बीच में आई है, उतना गैप है, उतना ही देखा उसने। तो खिड़की ने क्या किया? उसका ज्ञान बढ़ाया कि कम किया? वास्तव में इस खिड़की ने क्या किया कि अगर ये खिड़की नहीं होती तो वो चारों तरफ से देख सकता था, परंतु ये खिड़की है तो अब क्या, इस खिड़की में जितना गैप होगा ना उतना ही देख सकता हो। तो ये इंद्रियां हैं, वो वास्तव में देखने वाला तो कौन है? अपने अंदर का आत्मा ही देखता है ना। तो हम कहते हैं हमने आंख से देखा, तो आंख ने क्या किया? आंख ने देखा नहीं है, देखने का काम आत्मा करता है। आंख ने क्या किया कि आंख ने आपका जो देखने की शक्ति है ना उसको सीमित कर दी कि ये खिड़की, इस खिड़की से आप जितना देख सकते हो इतना ही देख सकते हो। नहीं तो अगर ये खिड़की नहीं होती तो आत्मा संपूर्ण लोकालोक को देख सकता है, इतनी सामर्थ्य उसमें है। परंतु इस खिड़की ने क्या किया कि मैं आपको अब इतना सा ही देखने दूंगा, बस इससे अधिक आप देख सकते हैं। तो ये सारी खिड़कियां हैं, वो अपने ज्ञान को कम कर देती है, अपने ज्ञान को रोक देती है। और ये मूढ़ जीव ऐसा मानता है कि ये इंद्रियां हैं तो मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता है। ये जीव की मूढ़ता है और इसलिए ये चाहता है। अब किसी व्यक्ति को ऐसा पता पड़ गया कि ये अगर इंद्रियां नहीं हो और शरीर नहीं हो तो आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ जान सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो इसकी इच्छा नहीं करेगा। पर इस जीव को भी ऐसा है कि ये है तो मेरा सारा काम चल रहा है और ये नहीं तो मेरा काम चलेगा नहीं। तो पहले ये श्रद्धा करना है कि इंद्रियों से और मन से ज्ञान होता है वो वास्तव में कम ज्ञान होता है, अपने ज्ञान को रोक देते हैं, ज्यादा करते नहीं है। और इंद्रिय और मन से रहित जो निरावृत ज्ञान है वो ज्ञान है, वो लोकालोक का ज्ञान है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं। और इसलिए विद्वान लोग हैं वो इसकी इच्छा करते नहीं है, क्योंकि उनको परिपूर्ण ज्ञान चाहिए, परिपूर्ण आनंद चाहिए, परिपूर्ण मुक्त भाव चाहिए, और इन्होंने इसको बांध के रखा है ऐसा जेल में। अभी अपन जेल में है कि नहीं? जेल में ही है। और ये शरीर
अपने ने जितना आयुष्य कर्म बांधा है ना उतने वर्ष की जेल है ये। और फिर अपने दूसरे जन्म में जाएंगे, इतने वर्ष की फिर से जेल। ऐसे हम जेल में ही रहते हैं। जब तक ये जीव संसार में रहता है तब तक वो जेल में ही रहता है, मुक्त तो कभी होता ही नहीं है। एक शरीर से दूसरे शरीर के बीच में वो विग्रह गति में होता है ना, एक समय के लिए, 2 समय के लिए, 3 समय के लिए, उस समय में भी वो कार्बन शरीर से घिरा ही रहता है, उस समय भी वो मुक्त नहीं है। तो इसको परद्रव्य को हम जेल समझे, ये कैद खाना है और इसमें मैं बंद गया हूं। अब उनको उस जेल से अगर हम प्रेम करने लगेंगे तो वो कोई जेल अपने को पीछा थोड़ी छोड़ेगा। किसी को जेल हो गई 14 साल की और फिर यूं कहे कि मेरे को तो यहाँ अच्छा लग गया है, तो फिर वो क्या करेगा पता है, फिर से जेल में जाए ऐसा अपराध करेगा ताकि फिर से जेल में जाने मिले उसको। तो उसको फिर से 14 वर्ष की जेल हो गई, फिर बाहर निकले, बाहर उसको अच्छा नहीं लगता, उसको जेल ही अच्छे लग गई है, फिर से अपराध करेगा और फिर से जेल में जाएगा। ऐसे वो जेल में ही जाता रहता है। ऐसे ये मूढ़ जीव है, इसको ये जेल अच्छी लग गई, इससे प्रेम हो गया इस शरीर से, और ये सारा संसार 4 गति का संसार है, वो सब उसको बांधने वाला है ना, माया, ये बहुत अच्छा लग गया। इसलिए वो इसी में रहने का कारण ढूंढता है और वैसे अपराध किया करता है कि मैं इस जेल से छूटूं नहीं, अलग अलग शरीरों में मैं जाता रहूं, अलग अलग गतियों को धारण करता रहूं और बस मेरा संसार हरा भरा रहे। तो हरा भरा संसार रखता है, तो इसके लिए आप अपराध करते रहो, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये करते रहो, तो आपका संसार कभी भी सूखेगा नहीं। अगर संसार सुखाना है तो मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सबको त्याग दो और देहादि के प्रति महत्व कम कर दो। धीमे 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 संसार है वो अपना सूख जाएगा। ऐसा तो ये अविद्वान लोग ऐसा कहते हैं। इसलिए आगे के श्लोक में कहा था कि महापुरुष आत्मा के लिए उद्यम करते हैं क्योंकि उनको मुक्त होना है। अब जो आत्मा के लिए उद्यम करते हैं उनको किस प्रकार की अनुभूति होती है उसकी बात आगे करते हैं। जो आत्मा में ही रहते हैं, विद्वान बन गए हैं। विद्वान बन गए मतलब क्या हुआ है कि अब वो उन्होंने जान लिया है कि किसको प्रेम करना अच्छा है, संसार को, शरीर को, कि अपने चैतन्य आत्मा को। तो जिसने अपने चैतन्य आत्मा में ही रहने का निश्चय कर लिया है उसको ही सर्वोपरि मान लिया है और उसी में रहने का प्रयत्न करते हैं, उनको किस प्रकार का आनंद होता है वो बताते हैं यहाँ पर उन योगियों को। श्लोक नंबर 47। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानन्दः कश्चिद् योगेन योगिनः आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानंद कश्चिद् योगेन योगिनः आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। एक एक लाइन। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारः बहिस्थितेः जायते परमानंद कश्चिद् योगेन योगिनः फिर से आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानंद कश्चिद् योगेन योगिनः एक साथ
3 बार। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानन्दः कश्चिद्योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारः बहिस्थितेः जायते परमानंद कश्चिद् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चिद् योगेन योगिनः। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानंद कश्चिद् योगेन योगिनः। चलो इसका कौन करेगा उच्चारण? हाँ, अरुण दादा। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानंद कच्चिद् योगेन योगिनः। वेरी गुड, सरस। विपिन भाई बोलो। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थितेः जायते परमानंदः कश्चित् योगेन योगिनः। वेरी गुड, सरस। पहली बार में तीर बराबर निशाने पे चलाया। विपुल भाई अभी सरल पड़ी। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार फिर से आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंदः कश्चिद् योगेन योगिनः। वेरी गुड, हितेश जी। आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहार बहिस्थिते जायते परमानंद कश्चिद् योगेन योगिनः। वेरी गुड, सरस। अब इसका अर्थ, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, आत्मा के अनुष्ठान में जो स्थित है, निष्ठा है, स्थित है। व्यवहार बहिस्थिते, और व्यवहार से जो बाहर है अर्थात ऊपर उठ चुका है, उसको जायते परमानंदः, उसको परम आनंद उत्पन्न होता है। कश्चित, कोई अनिर्वचनीय। कैसा आनंद उत्पन्न होता है? अनिर्वचनीय। योगेन योगिना, योग के द्वारा योगी को। अर्थात आत्मा के अनुष्ठान में जो अधिष्ठित है, ऐसे योग से योगी को, जो कि व्यवहार से ऊपर उठ चुका है, उसको कोई अनिर्वचनीय परम आनंद उत्पन्न होता है। आत्मानुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब क्या होता है? अनुष्ठान का मतलब होता है क्रिया। આપણે कहते हैं अनुष्ठान करिए छिए। क्रिया का अर्थ होता है वर्तन। वर्तन कहो, क्रिया कहो, आचरण करो, आचरण कहो, ये एकार्थवाचक शब्द है। तो आत्मा की क्रिया करता है, आत्मा में आचरण करता है, आत्मा में वर्तन करता है, आत्मा में ही जिसकी वृत्ति है, आत्मा में ही जिसका उपयोग लगा हुआ है। तो जो आत्मा में उपयोग लगाने में ही जो अधिष्ठित है, निष्ठा वाला है, और बाहर के कार्यों से जो उपेक्षा भाव रखता है, व्यवहार बहिस्थिते, व्यवहार के कार्यों में जो बाहर स्थित है, ऊपर उठ चुका है। घर गृहस्थी कैसे चल रही है, ये क्या है, वो क्या है, दुनिया क्या है, वो क्या कर रहे हैं, कौन आजकल देश समाज में क्या हो रहा है, इन सब की कोई चिंता जिसको नहीं है, ये जो बार बार याद करता नहीं है, वो व्यवहार से बाहर स्थित है। उसको क्या होता है? योगेन, योग से, वो आत्मा में उपयोग को जोड़ता है ना, इसलिए उसको योग कहा है। उस योगी को जायते परमानंद, परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसके लिए हमको व्यवहार को छोड़ना पड़ता है। हम अभी क्या है कि व्यवहार में इतने उलझे हुए हैं, इतने उलझे हुए हैं कि अंदर के आनंद की कुछ खबर है नहीं है।
हमेशा कोई न कोई काम में लगे हुए, प्रवृत्ति ही अच्छी लगती है। ऐसे कौन है? आप केवल 5 मिनट कुछ नहीं करना हो, हाथ पे हाथ रख के बैठना, कमर सीधी, 4 बार हिलेंगे, 4 बार आंख खोलेंगे, ऐसा 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 ऐसा। ये उस व्यक्ति को क्या है, अंदर जाने का कुछ भान ही नहीं है। इतना चंचलता हमारी बढ़ गई, और जिसको बाहर का कोई भान नहीं। भाई ऐसा करना तो पड़ेगा अगर सच्चा आनंद प्राप्त करना है और इस मनुष्य देह को सार्थक करना है, इस मनुष्य भव को सार्थक करना है। तो किमिदम, कीदृश, कस्य, कस्मात्, क्व इत्यविशेषण, इन सब में साधारण हो जाओ। ये किसका है, ये क्या है, कैसे है, ये शरीर को भी भूल जाओ। गर्मी हो रही है तो हो रही है, इसमें क्या है, होता है तो होता है होता है तो होता है, इसमें क्या दिक्कत है। अपने ऐसे भाव रखना हमेशा, आंख बंद करके बैठ करके अथवा आंख खोल करके बैठ करके, जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं तो उसका मात्र ज्ञाता हूं। इसलिए अपने उस ज्ञाता भाव को पकड़ के बैठना और बाकी के प्रति वो एकदम उदासीन हो जाना। पंखा चल रहा है तो चल रहा है, बाहर कोई आवाज कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई उठ के जा रहा है तो जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है तो आ रहा है, पक्षियों की आवाज आ रही है तो आ रही है, गर्मी पड़ रही है तो पड़ रही है, बारिश हो रही है तो हो रही है, ठंड पड़ रही है तो पड़ रही है। अपने क्या पड़ रहा है तो वो तो पड़ेगा ना, ऋतु आएगी तो सब होगा, गर्मी आई तो गर्मी होगी, सर्दी आई तो सर्दी होगी। पर उस બહાર जिसका उपयोग उसका ઓહો વરસાદનો મોસમ છે, 1 તારીખ થઈ ગઈ છે, વરસાદ જ નથી આવતો। મુંબઈમાં આટલો વરસાદ પડ્યો છે, और गर्मी के दिन घणी गर्मी है, टेम्परेचर 45 डिग्री થઈ गयो। वो एसी में बैठा हो, एसी में बैठा हुआ व्यक्ति को भी गर्मी लग रही है, वो टेम्परेचर देख करके। अरे तुमको क्या मतलब है, 45 डिग्री टेम्परेचर हो कि 48 डिग्री हो, तुझे 48 डिग्री में 10 मिनट भी नहीं रहना है। घरों में ही रहते हैं ना, टेम्परेचर पर 46 हो कि 48 हो, पर कौन लोग बाहर घूमते बताओ इसमें से? तो उसको चिंता करने की क्या जरूरत है, उसको तो एसी में बैठना है, भले 50 हो जाए ना, क्या प्रॉब्लम है उसको। और अगर आपको 48 में रहना भी है तो कितनी देर पता है, 5 मिनट। और उसके लिए हवा खड़ा करो, आ फरे तो એટલી ગરમી આવી છે। પેલા વિદેશોમાં ઘબરાય, અહીંયાથી ટેમ્પરેચર જોઈને हो। अब वो विदेश वाले यहाँ पर आए और मान लो यहाँ भी गर्मी में रहे, तो घरों में तो एसी लगे हो, और स्वाध्याय हॉल में आना है तो घंटा भर बैठना है उनको, और उसमें भी बहुत गर्मी होती है तो यहाँ तो आते भी नहीं है, बॉस हो तो घर में ही ज्यादा समय रहना, तो भी हवा खड़ा करो, घणी गर्मी लागे छे। अब दिन में 1 घंटा भी वो गर्मी सहन नहीं कर रहा है, आधा घंटा भी नहीं कर रहा है, वो टेम्परेचर को देख देख के। ये हम बाहर ही बाहर घूमते हैं। तो जो हो रहा है वो हो रहा है बस। कोई मर रहा है तो मर रहा है, जी रहा है तो जी रहा है, कोई गाली दे रहा है तो गाली दे रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है तो प्रशंसा कर रहा है। सब अपनी अपनी परिणति से अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने उदय के अनुसार सब जी रहे हैं। हमें क्या करना है, आत्मानुष्ठान निष्ठस्य। हमें तो अपने स्वरूप में लीन रहना है। ऐसी बुद्धि जिसकी हो जाती है, उसका देखो आनंद, उसका चेहरे का नूर देखो आप, उसका चेहरा कभी उदास नहीं होगा। कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाएगी पर वो फूल की तरह खिला हुआ रहता है, और अधिक कठिन परिस्थिति आती है तो और फूलता है, और मजा आता है उसको। देखो मजा आ गया, आओ गर्मी को आना तो आओ, सर्दी को आना आओ, वर्षा को आना हो तो आओ, निंदा को आना हो तो आओ, प्रशंसा को आना हो तो आओ, भूख को आना हो तो भी आओ, प्यास को आना है तो भी आओ,
मुसीबत आनी आओ, क्या कर लोगे आप मेरा? मैं, मेरे अंदर कवच है मेरा, हाँ, आत्मा का कवच पहन रखा उसने, ज्ञाता दृष्टा सहज शांत निराकुल चैतन्य भाव, उसमें स्थित हूं। मेरा क्या बिगाड़ लेगी सर्दी, मेरा क्या बिगाड़ लेगी गर्मी, तुम्हारे निंदा क्या बिगाड़ लेगी मेरा? और तुम मुझे मार भी डालोगे तो क्या बिगाड़ लोगे? ये तो मरने वाला है ना। सांप मेरा क्या बिगाड़ लेगा, बिच्छू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, डेंगू मच्छर मेरा क्या, मच्छर से डरते हैं, इतने से मच्छर से बहुत डरते हैं, इतना क्या बिगाड़ लेगा वो? इतना डरता डरता व्यक्ति जीता है, इतना डरता डरता व्यक्ति जीता है कि पूरा जीवन डर में निकल जाता है, भय में निकल जाता है। और जिसको इस सर्वज्ञ देव के तत्व पे निष्ठा हो गई कि इस जीव का, इस शरीर का जिस समय जो होना है उस समय वो होगा होगा और होगा, इंद्र जिनेंद्र नरेंद्र कोई नहीं रोक सकता इसको, निश्चिंत। इसको कहते हैं आत्मानुष्ठान निष्ठस्य। और ऐसे व्यक्ति को जायते परमानंद कश्चित, कोई अनिर्वचनीय आनंद में हमेशा झूला करता है। ऐसा नहीं कि कभी कभी, हमेशा उसको एक विशिष्ट प्रकार का आनंद, विशिष्ट प्रकार की शांति रहा करती है, चाहे निवृत्ति में हो अथवा तो वो प्रवृत्ति में हो। क्यों? क्योंकि वह व्यवहार से ऊपर उठ चुका है, उसका आत्मा व्यवहार के कार्यों में उलझा नहीं है। ऐसा होने का प्रयत्न करें। सभी महापुरुषों ने इसी का प्रयत्न किया है। तो थोड़ा सा श्रद्धा बढ़ाओ, थोड़ा सा सत्संग बढ़ाओ, थोड़ी निष्ठा बनाओ तत्व में, तो ऐसा हो जाएगा, इसी भाव में हो जाएगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 नमस्कार महामंत्र आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।